But when you prepare for the exam, you can leave that portion for preparation at the preparation time. ऊपर air, नीचे glass, and so light is going from air to glass and then coming out from glass to air. So it is the same pair of medium having refractive index, let's say mu. Light is incident on the first boundary. It is going from air to glass, so it will bend towards the normal. It bend towards the normal. Angle of incidence is I. Angle of refraction is R. Air. Just right. So when a light goes from air to glass, it bends. When light goes from air to glass, it bends toward the normal, or angle of incidence is I. Angle of refraction सर is, बोलो बेटा. सर ये रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है ना? स्लैब, हाँ एक ही बात होती है. ब्लॉक या स्लैब. बुक में ब्लॉक लिखा है क्या? अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हो गया. वेरी नाइस. यस, इट्स द सेम थिंग. ब्लॉक और स्लैब. Very nice. So light goes from air to glass, it bends towards. When light goes from air to glass, it bends towards the normal. I is the angle of incidence, R is the angle of refraction. So apply the Snell's law for first surface. सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो बेटा. सर जब वो ग्लास से बाहर आती है तो हम देखते हैं लाइट कि उसका जो ओरिजिनल रे थी और जो ग्लास से बाहर रे आई है उसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हाँ, मैं वो पूछता था कि वो क्यों होता है? जब वो बाहर आई तो उसे अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं आ जाना चाहिए? अभी आते हैं, उसी पे आते हैं. आगे का जब रे डायग्राम बनाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा. बिकॉज लाइट, दिस इज द इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट जिस रास्ते पे जा रही थी वहां से बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. एंड आफ्टर बेंडिंग, now this is incident at the second boundary at an angle of incidence R only. Right? Now at the second boundary, angle of incidence is R, but the pair of medium has changed. Now light in inside it is incident from glass to air, so now it will bend away from the normal. So this is A O. So when light is incident on glass air boundary, इसका angle of incidence कितना हुआ? On glass and air boundary, it goes from denser to rarer medium. पहले वाले में rarer से denser में जा रही थी, so it move bend towards normal. Now it is going from denser to rarer, so it will move away. It moves away from the normal. अभी कितने एंगल से होगी ये हमें अभी नहीं पता है, so उसके लिए हम अप्लाई करेंगे फिर से Snell's law. The light that emerges from the second surface फिर से बाहर air में आ गई. So let's say it comes out at an angle of I dash. It will bend away from the normal. Let's say it goes at an angle of I dash. So at the second boundary, when it goes from glass to air, apply Snell's law again.
स्नेल्स लॉ के लिए हमने एक दूसरा तरीका पढ़ा था कि म्यू इनटू साइन ऑफ दैट मीडियम, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दैट मीडियम विल बी कांस्टेंट। सो ये पहले सरफेस पे थी, from the air to glass, when light is going from air to glass, apply the Snell's law of refraction. At the second surface, light is going from glass to air. From glass to air, it will be sine incident angle कितना है r, r divided by angle of refraction is I dash, और अब इसका जो है refractive index वो होगा air with respect to glass, so that will become 1 by mu. सेकेंड वाले केस में लाइट बाहर जा रही है एयर में, सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट बिकम 1 by mu. कबीर, सो अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों को sin i बाई sin r इज इक्वल टू म्यू, एंड ये सेकंड इक्वेशन समझ में आ गया। इसके लिए क्या किया था हमने, एक दूसरा तरीका पढ़ा था, म्यू इनटू sin r इज इक्वल टू 1 इनटू sin i डैश। तो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है म्यू इनटू sin r इज 1 इनटू sin i डैश। एक न्यू मेथड पढ़ा था हमने साइंस लॉ लिखने का, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन। सर ये दूसरे वाले केस में ये 1/μ क्यों है? क्योंकि ये एयर से ग्लास में जा रही है ना, इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो जब हम स्नेल्स लॉ लगाते थे हम क्या लिखते थे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बाई 1। म्यू 2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच लाइट गोज, राइट। यहाँ पे किस मीडियम में जा रही है, बाहर एयर में, किससे आ रही है, ग्लास में। एंगल ऑफ इंसिडेंस था r और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिससे बाहर निकला दैट इज sin i dash. We are applying the Snell's law for the second surface. So the light is coming out in the medium of air, it is coming from the glass, so air with respect to glass. समझ गए? यहाँ Yes, sir. understood? Yes, sir. So अब ये जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। प्रूफ क्या कर रहे हैं वो अभी समझ में आ जाएगा। इट वाज sin i बाई sin r, इसको मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड को तो आ जाएगा sin r बाई sin i डैश इज इक्वल टू म्यू इनटू 1 बाई म्यू, कैंसिल, दैट बिकम 1, sin r कैंसिल, sin i is equal to sin i dash, angle of incidence I should be equal to I dash. So इसका मतलब जितने एंगल पे लाइट गई थी उतने ही एंगल पे वापस बाहर निकलेगी, राइट। बेटा ये समझ गया कैसे प्रूव किया? Yes, sir. Mr. Vihan understood this? Yes. एंगल ऑफ इंसिडेंस I, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट लाइट थी, अगर इसको भी थोड़ा पीछे ऐड कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे, तो ये दो पैरेलल एंगल हो गए, दोनों दो पैरेलल लाइंस बन जाएंगी, बिकॉज एंगल I इज इक्वल टू ये I, दिस विल आल्सो बी I, टोटल एंगल इज I एंड दिस एंगल इज इक्वल टू हियर। इसका क्या मतलब हुआ,
that I is equal to I dash का मतलब इंसिडेंट रे जो पहले आ रही थी और इमर्जेंट रे, दोज टू आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि इंसिडेंट ने भी नॉर्मल के साथ आई का एंगल बनाया था और इमर्जेंट ने भी 90 डिग्री नॉर्मल के साथ, it is making the same angle. This is emergent ray. The Sir, can you incident show the ray, next slide again? I need to एक copy it मिनट, down. मैं इसको थोड़ा एक बार इसमें लेबलिंग कर दूं. This is incident ray. We'll make another diagram also because this is very small. Emergent ray. तो incident ray को extend करोगे, emergent ray को extend करोगे, those two light rays are parallel to each other. Yes. So this I is equal to I dash, and this confirms that the emergent ray is parallel to the incident ray. अगर ऊपर और नीचे दोनों का मीडियम सेम होगा, so emergent ray is parallel to incident ray. So when light comes out from the glass slab, it is parallel to the incident ray, but it is shifted in perpendicular direction. Right? जिस एंगल पे लाइट ने इंसिडेंट किया था, at the same angle it is coming out. That is the concept. And light ray is incident at an angle of I, it will bend inside because of the refraction, then it will bend away. But when light ray comes out, it is parallel to the incident ray. Correct? So light ray is emerging parallel to the incident ray, but it has some perpendicular shift. It is not coming out along the same line. It has some deflection, some perpendicular deflection, and that perpendicular deflection is defined as lateral displacement or lateral shift. We denote by delta also or D also, lateral displacement. Lateral का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन से perpendicular. It's called lateral displacement. So incident ray जिस डायरेक्शन में जा रही थी, emergent ray is also coming at the same angle. This angle is I. Here also we just proved that angle of emergent I dash is equal to I also. Incident का perpendicular के साथ I angle, emergent light ray का भी perpendicular के साथ angle I. So both the light rays are going in the same direction, but there is a shift of the light ray. Emergent light ray has shifted in perpendicular direction, and that perpendicular shift is called lateral shift or lateral displacement. Emergent ray is parallel to incident ray. We just proved that angle of incidence. आपके book में angle of emergence को E से लिखा हुआ है. I have represented by I dash. The same thing. आप E या I dash कुछ भी use कर सकते हो. So when it comes out, the emergent ray is parallel to the incident ray. That's the first condition. किसी भी glass slab से देखने पे जो emergent light ray होगी वो parallel होगी. इसका मतलब जो हम object देख रहे हैं वो थोड़ा सा shift हो जाएगा, but it will be in the same direction. Angle R, angle R. अगर सपोज की थिकनेस है T, वैसे ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट आई विल जस्ट एक्सप्लेन क्योंकि अभी हम आगे पढ़ना है कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. The lateral displacement depends upon what factor. For that I'm just giving because it is very simple formula. Lateral displacement is the emergent light ray is displaced perpendicular to the direction of propagation. ठीक है, so please इसको लिख लेते हैं. Yes, so any doubt in this diagram? repeat कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला बोला आपने अभी? ये फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे. फॉर्मूले से पहले इस प्रोसेस में कोई डाउट है तो पहले वो पूछो. The lateral displacement. हाँ, मतलब इस डायग्राम में एनीथिंग नॉट क्लियर इन दिस डायग्राम? No, इसका sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू,
लाइट पहले एयर से ग्लास में जा रही है, so it bend towards the normal from the second surface. It is going from glass to air, so it bends away from the normal, and due to which, right, now emergent ray is parallel to incident ray. This we have proven mathematically, and which confirms that incident light ray and emergent light ray will be parallel. And जितना उन दोनों के बीच में perpendicular shift होगा, that this shift or that displacement is called lateral displacement. Please write the definition. When light ray passes through a glass slab, or glass block, it emerges parallel to incident ray. It emerges parallel to incident ray, but laterally displaced, but shifted in perpendicular direction. तो जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी वहां से perpendicular direction में थोड़ा shift हो जाएगी, but shifted in perpendicular direction. Right, so the perpendicular distance between the direction of incident ray the perpendicular distance between the direction of incident ray and emergent ray is defined as lateral displacement. Is defined as lateral displacement. Now this lateral displacement is denoted by d or lambda, जो भी हम लिख सकते हैं. So दोनों के बीच का perpendicular distance, that is called lateral displacement. Lateral displacement का पहले हम formula derive करेंगे, and then we will see on what factor it depends on. Lateral displacement depend upon which factor? So उसके लिए हम यहाँ से formula derive कर लेते हैं, which is not required for the school, but just for your understanding, so that you can understand on what factor it depends. Like ये angle कितना होगा? तेजस्वी, how much will be this angle? इस angle को कुछ हम बोलते थे. Light जब किसी surface पे आती है, incident, and it goes at some other direction, दोनों के बीच में कुछ, the angle between the incident ray and refracted ray is called angle of deviation. Yes, sir. Angle of deviation, and what is the value of angle of deviation? कितना होगा ये I और R के terms में? This will become I minus R. This will become I minus R. Yes. Yes, sir. बेटा समझ आ रहा ना ये श्रेय? It is I minus R. Yes, sir. Angle of deviation जब light किसी भी surface पे refract होती है, then it is I minus R or R minus I. So I minus R is the angle of deviation that is caused. ये इधर ले लेते हैं A. In your diagram, this is A, O, B, C, and let's say this as D. So अगर हमें BD calculate करना है, to calculate BD, what we can do is BD calculate करने के लिए हम calculate कर लेते हैं पहले AC.
BD, we can take this right angle triangle. In triangle OBD, BD is perpendicular, OB is hypotenuse, is equal to sine of I minus R. तो ये समझ आ रहा है? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse is sine theta. Yes. Sir, can you hear me? Done. Understood? बेटा ये समझ में आ रहा ना Sir, perpendicular और ये आप Yes. कोई एग्जाम्पल कर सकते हो ताकि कैलकुलेशन समझ आ जाए। एग्जाम्पल ही पहले प्रूव तो कर लेते यार। ये परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है, BD इज परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है। BD is perpendicular and OB is in the triangle OB and D. Perpendicular upon hypotenuse is sin theta. Triangle OBE ले लेते हैं, this is 90 degree. In triangle OBE, cos of R is equal to OE divided by OB. OE is equal to सर जब पहले बोलो, I बोलो। माइनस आर जितने एंगल से डेविएट हुआ है उतने ही एंगल से फिर वो वापस डेविएट होगा ना बी हाँ, पॉइंट इसके से। लिए तो पैरेलल हो गया, करेक्ट। OE divided by cos R, OE is equal to T divided by cos R. यहाँ पर हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं, so BD is equal to OB sin. इसको आपको प्रूव नहीं करना, बस सिर्फ देखना है, डोंट वरी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाई हमने ये किया क्यों, क्योंकि हमें अभी ये देखना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। BD इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने इसमें डेल्टा से डिनोट किया। दिस फॉर्मूला यू डोंट हैव टू डिराइव फॉर द स्कूल because there are some concept कि how to on what factor this lateral displacement depends, उसके लिए we have just proved this in a way. Okay, क्या किया, पहले ट्रायंगल लिया OEB perpendicular, so R के लिए OE is base यानी T is thickness of slab. In all this, T is the thickness of this glass slab जिसके थ्रू लाइट पास हो रही है, and this delta is the lateral displacement, so we use this right angle triangle. In this right angle triangle एक बार OB निकाल लिया, OB आ गया बेस T upon cos R, और दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया BD. BD is OB times sin I minus R, OB is T by cos R. तो जो lateral displacement का फॉर्मूला फाइनली हमने डिराइव किया, this is T है thickness, sin I minus R, तो डिपेंड किस पे करेगा, sin of I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, and it depends upon R. I और R का रिलेशन कहाँ से आता है, by refractive index. So there are three factors that we got in this formula. एक तो T पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा. So these are the three factors on which the lateral displacement or lateral deviation depends upon the light. Correct? बेटा इस फॉर्मूले से समझ आ रहा है ना, ये डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, थिकनेस बढ़ाएंगे तो ज्यादा डेविएशन होगा, आई बढ़ाएंगे तो ज्यादा डेविएशन होगा. आई और आर इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, आर विल डिपेंड अपॉन द म्यू. म्यू किस पर डिपेंड करता था, डू यू रिमेंबर, हम लास्ट क्लास में कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था, काउचीज रिलेशन. व्हाई आई एम गिविंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप एग्जाम में खुद कंक्लूड कर सकते हो दैट हाउ विल इट चेंज ऑन विद द डिफरेंट फैक्टर्स. जैसे अगर हमने थिकनेस बढ़ाई, so lateral displacement of any light ray when it passes through glass slab, lateral displacement of light ray depends upon these factors. कैसे डिपेंड करता है वो हम इस फॉर्मूले से समझेंगे, कैसे मतलब
whether it will increase or it will decrease. So lateral displacement depends upon thickness of the glass slab. Next is the lateral displacement of depends upon. कैसे डिपेंड करता है उसके लिए हम समझ लेते हैं. How does it depend means it increases or decreases. First factor था T. T is called thickness of the medium or thickness of the slab. So glass लिखना थोड़ा गलत होगा because it also happens for the water or for any other denser medium. So thickness of the medium. So in this formula you can see that T is directly proportional to delta is directly proportional to T. Delta is directly proportional to T. तो जैसे जैसे हम उसकी thickness बढ़ाएंगे, the deviation will increase. The lateral displacement increases with thickness of medium. The lateral displacement increases with thickness. More the thickness, more will be the displacement. Second factor सर क्या था? कभी जब हम कभी किसी ग्लास के थ्रू लेजर लाइट मारते हैं तो फिर दूसरी साइड वो लेजर लाइट कहीं और जाके लगती है. हाँ, दिखता है ऐसा. ओके नहीं दिखता है. सर दिखता था ना, मैं सोचता था क्यों होता है, ये आज पता चल गया. अगर आपने कोई स्ट्रॉ रखी हो, आप उसको वाटर में देखते हो. Straw in a transparent glass, and if you see from side तो straw ऐसे लगता है कि बीच से कट गई है and it is in two part. हाँ सर, कभी कभार बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है स्टॉक, पता नहीं कैसे. हाँ, मोटी तो ठीक है, बट ये जब भी हम बात करें lateral displacement की, वो कुछ ऐसी हो जाती है that it will be slightly shifted. बोला ऐसा लगेगा कि दो अलग अलग straw है, अंदर दूसरी है और बाहर दूसरी. So this is the due to the lateral shift. Okay. Second किस पे depend करता है? On this formula we derived I. So it depends upon angle of incidence. Angle of incidence बढ़ाने पे बढ़ेगा कि कम होगा? From the formula what will be? देखो factor पे कैसे depend करता है वो तो हम learn कर सकते हैं, but I mean कौन से factor पे depend करता है? But how does it depend? Which that we can infer from this formula. अगर formula याद नहीं रहता तो भी चलेगा. Don't worry, स्कूल में आपको ये फॉर्मूला नहीं डिराइव करना है, बट ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी अलग से स्टार मार्क करके गिवन है. राइट. T sin I minus R by cos R on page number 77. So I just derived it also कि ये आया कहाँ से है. हाँ, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, देन व्हाट हैपेंस टू द लेटरल शिफ्ट. इस फॉर्मूले को देख के क्या लग रहा है? अगर हम I बढ़ाएंगे तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कि कम होगा? What will happen to the lateral displacement? अगर I बढ़ाते हैं तो साइन ऑफ एंगल बढ़ने के साथ साथ साइन वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? Sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 is root 3 by 2, sin 90 is 1. इंक्रीज हो रही है. यस सर. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर भी it increases with increase in angle of, so angle of deviation increases. It increases with increase in angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब आते हैं हम म्यू पे. थर्ड क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन डिसाइड करता है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट? For any given medium also different colors will have different refractive index according to Cauchy's relation.
म्यू था a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर। म्यू अगर ज्यादा होगा तो उसका मतलब r छोटा होगा, साइन a बाई साइन r इज म्यू। जिसका r छोटा होगा वो ज्यादा बेंड हो जाएगा, तो मोर म्यू मींस मोर डेविएशन। लेटरल शिफ्ट इंक्रीज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ये समझ गया ना? फिर से म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अगर ये व्हाइट लाइट है तो हर एक कलर के लिए आई तो सेम है, राइट? जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए आर छोटा होगा, आर छोटा होगा इसके लिए जिसका म्यू ज्यादा है। आर छोटा का मतलब लाइट इज बेंट मोर, आर छोटा का मतलब इट इज so the light which has the color which has more refractive index, for which the medium has more refractive index, will be deviated more and accordingly. So अगर हम visible light की बात करते हैं, white light की बात करते हैं, उसमें 7 गुण होते हैं, विब्योर VIBGYOR। so सबसे lateral displacement increases with increase in refractive index. Lateral displacement increases with increase in refractive index, right? म्यू जितना ज्यादा होगा डेल्टा उतना ज्यादा होगा, और म्यू ज्यादा किसका होगा? फॉर द स्मॉलर वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ कम है, लेस वेवलेंथ मींस मोर, फॉर लेसर वेवलेंथ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू दिस काउची रिलेशन। विक्रमादित्य समझ आ रहा है? Yes, sir. For which color refractive index is maximum out of the 7 pure? For which color it has maximum yes, wavelength में सबसे कम किसकी होती है? Violet। Yes, sir. Violet की wavelength सबसे कम और red की सबसे ज्यादा, so this is the order of wavelength. Opposite will be the refractive index of order of refractive index. इसलिए lateral displacement maximum किस कलर के लिए होगा? Violet के लिए। वायलेट अगर हम wavelength के साथ लिखें तो क्या लिखेंगे? lateral displacement decreases with increase in wavelength, right? Lateral displacement decreases with increase in wavelength, क्योंकि wavelength बढ़ाएंगे तो refractive index कम होता जाएगा। That means violet color has maximum deviation. Violet color has maximum lateral displacement and red has minimum in the visible light. Correct? Okay. So ये हो गया 3-4 फैक्टर जिन पे ये लाइट the lateral displacement depends when it passes through a slab. When it is incident on a slab, it bends toward the normal. It bends towards the normal. Then the second surface, it moves away from the normal and emerges parallel. But when it emerges parallel, it is displaced perpendicularly. That perpendicular displacement is called lateral displacement. उसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, t sin I minus r divided by cos r. t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r डिपेंड करता है म्यू पे, म्यू जितना ज्यादा r उतना कम, so which means more will be the displacement. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा उसमें lateral shift और lateral displacement. Right? Read it and if there is any doubt, please ask. क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। Okay, just a second.
Yes, boss. Understood? Tejasvi, doubt? Riddhi? Agastya, understood? क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरी? Okay, someone has written in the chat. Mic is not working. Okay, very good, very good. No problem. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज जब हम किसी थिक स्लैब को यूज करते हैं, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब. नाउ सपोज इफ यू आर यूजिंग अ थिक मिरर और यस क्लियर. सो सेकंड नेक्स्ट केस इज मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ थिक मिरर. हम कितना भी पतला मिरर बनाने की कोशिश करें, देयर विल बी टू लेयर्स ऑब्वियसली, एक ऊपर और एक नीचे. एक तरफ तो हम पॉलिश कर देते हैं. So next is the image formation by a thick plane. Image formation by a thick glass plate or thick mirror. Right? So अगर हम mirror thick लेते हैं या कोई भी ऐसा glass slab लेते हैं, then what happens is there will be two layers. How so small, how so thin we try to make it. Polishing करेंगे एक ही side पे, only one side there is a polishing here. Now any light which is incident, first surface पे क्या होगा? On the first surface there will be reflection as well as refraction. On every medium boundary light gets refracted plus reflected both. So at this surface, इसका मतलब जो पहले रिफ्लेक्शन से इमेज बन रही होगी हमें, सपोज देयर इज द ऑब्जेक्ट O, इसकी इमेज मिलती है एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर virtual I1. The first image is formed by the reflection, but reflection सारी लाइट का नहीं हो रहा है, reflection केवल थोड़ी सी लाइट का होगा. Some of the light is also getting passed into the second medium. Clear? ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि पहले वाले मीडियम पे पॉलिशिंग नहीं है, there is just air and glass boundary. Some amount of light is reflected and the rest is refracted into the second medium. सर अगर ये जो लाइट पॉलिश होता तो फिर सारा रिफ्लेक्ट हो जाता, राइट? बट पॉलिश कर कैसे सकते हैं वहां पे ना, वो तो ग्लास स्लैब है. कितनी भी थिन से थिन बनाने की कोशिश करोगे, हम पॉलिशिंग तो नीचे वाले पे कर पाएंगे ना. ग्लास के अंदर जाके पॉलिश कैसे करोगे? दिस इज ग्लास. ओके सर. दैट इज द क्वेश्चन कि अगर ये बहुत थिन है तब तो ठीक है, बट अदरवाइज इफ इट हैज सम थिकनेस तो हमें दो अलग अलग सरफेसेस से मल्टीपल रिफ्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो गया. अभी सेकंड सरफेस पे जो लाइट आई है, दिस विल रिफ्लेक्ट हियर. अब सेकंड वाले सरफेस पे सारी की सारी लाइट वापस आ जाएगी क्योंकि आगे पॉलिशिंग है, सो इट कैन नॉट गो इन द एयर. जैसे पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, पिछले वाले केसेस में वो बाहर निकल जाती थी. नाउ इट कैन नॉट गो बिकॉज देयर इज अ पॉलिश्ड सरफेस, सो इट कैन नॉट गो आउट. ये सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस रिफ्लेक्शन के बाद व्हेन इट गोज आउट टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इससे जो हमें इमेज मिलेगी वो उसमें लाइट सबसे ज्यादा होंगी. पहली वाली इमेज इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द लाइट,
the second image will be for most of the light. Again यहाँ से light reflect भी होगी और साथ में reflect or refraction. Again light cannot go, so it will be bent towards the normal. So ऐसे करके हम अगर एक सेकंड सर, बोलो बोलो बोलते वो फिर दूसरा वापस रिबाउंड कैसे करा? वो रिफ्लेक्शन है? जब कोई बाउंड्री होती है ग्लास और एयर तो वहां पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है. अच्छा, At every medium boundary, both reflection as well as refraction takes place, but polished surface mirror पे only reflection takes place क्योंकि उसमें आगे जाने के लिए कुछ है नहीं. There is no medium further. It is polished. It सर ये cannot. तब तक होता रहेगा जब तक वो लाइट का इतनी वीक नहीं हो जाएगी कि वो Correct, फिर correct, correct. वापस Yes, ले जा yes. सकती. जब तक वो इतनी ना हो कि हमें देखना बंद हो जाए. होता तो रहेगा इनफाइनाइट तक, बट एक लिमिट के बाद जैसे इंटेंसिटी कम होगी, we will not be able to see तो those. सर सबसे ज्यादा लाइट फर्स्ट वाले रे पे होगी, सेकंड या थर्ड पे? यही दैट इज द कॉन्सेप्ट. पहले वाले में तो केवल रिफ्रैक्शन पार्ट से हो रहा है ना. रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन में जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत कम होगा. रिफ्लेक्शन इज ओनली 30% और 20% काइंड ऑफ लाइट. मोस्टली द लाइट इज रिफ्रैक्टेड, मतलब 90% तक लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है जब भी एयर से ग्लास में जा रहा है. सो दिस इज ओनली 10%, 20%, मैक्स 10% लाइट. तो पहली इमेज बहुत फेंट बनेगी. हमेशा जो मैक्सिमम ब्राइटेस्ट इमेज होगी वो सेकंड वाली होगी कि जितनी लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुई थी 90%, वो सारी की सारी फिर से 90% रिफ्लेक्ट हो गई. अब 90 का 90% बोल सकते हो आप. सो सेकंड इमेज विल बी ऑलवेज द मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी. करेक्ट. पहले वाली इमेज मतलब जब पॉलिश सरफेस नहीं होता तो रिफ्लेक्शन कम होती है, रिफ्रैक्शन ज्यादा होती है, राइट? पॉलिश सरफेस में रिफ्लेक्शन होते नहीं, बस एक ही बार खत्म हो जाता है. ओनली वन स्टेप. इफ देयर इज नो पॉलिश सरफेस, लाइट आई, थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई, थोड़ी रिफ्रैक्ट हुई, फिर ये बाहर गई. तो ये तो मैं अंदर कह यहाँ रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है ना रिफ्लेक्शन से. करेक्ट. हाँ, रिफ्लेक्शन ज्यादा. अगर पॉलिशिंग नहीं है तो रिफ्रैक्ट ज्यादा हो रही है लाइट, और अगर पॉलिश्ड है तो लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी टू द सेम मीडियम. सो इसमें बस रे डायग्राम से आपको ये दिख जाएगा कि देयर विल बी इनफाइनाइट इमेजेस. सो लाइट, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको लिखना है, इट विल बी रिपीटेटिव स्टफ. सर बस सेकंड में सबसे ज्यादा ब्राइट होगी, बाकी सारी डल सी होंगी, राइट? बाकी और आगे डल होती जाएंगी. जैसे तो आगे जाएंगे, इंटेंसिटी इज रिड्यूसिंग, इमेज विल बी गेटिंग लेस इन इंटेंसिटी. तो हमें केवल 3 या 4 इमेजेस दिखेंगे. उसके आगे इमेजेस दिखेंगे नहीं. बन रहे तो इनफाइनाइट रही होंगी. मतलब सर सबसे ब्राइटेस्ट सेकंड है और सबसे डलेस्ट तो है जो लास्ट होगी. जो लास्ट में है, जितनी भी आगे होती जाएंगी. ठीक है. सो नेक्स्ट इज व्हेन अ लाइट रे passes through a thick mirror or thick slab. When a light ray from an object is incident, on a thick mirror, or glass plate, it suffers multiple रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. दोनों मल्टीपल टाइम्स सर होंगे. मुझे ये नहीं समझ आया, अगर वन पार्ट ऑफ द मिरर इज ट्रांसपेरेंट तो वो अंदर बार बार रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? व्हाई डजंट द लाइट रे जस्ट कम आउट? Because there's a change in medium. When there's a change in medium, it acts like to boundary, but not all of light can pass. Some of the light, every medium boundary, reflection always takes place with refraction. Only refraction is never possible. This we did also last class. Refraction is always accompanied with reflection. ये बात लगे कि मीडियम में मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिट होगी, थोड़ी सी लाइट वापस आ जाएगी. Sir, then I4 will be the dimmest of all of the rays. करेक्ट. यस. राइट. अब इसको मैं हर एक इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो आप समझ गए होंगे. पहली बार जो लाइट आई वो पहले सरफेस पे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है. ये लिख लेते हैं. ऑन द फर्स्ट सरफेस
when light goes from सर मैं A, पहले वाला नोट कर रहा था. नोट कर लो. Yes. सर हो गया. Okay. When light is incident, when light is incident on the surface, on the glass slab, incident on the first surface, air to glass, most of the light मतलब वो ग्लास की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, बट ऑलमोस्ट 90 to 95% is transmitted or refracted or refracted in glass. सर आपने Only- ग्लास के आगे क्या लिखा है पहले? फॉर सरफेस एयर टू ग्लास. Sorry for my handwriting. Most of the light, 90 to 95% is transmitted or refracted in glass only. Remaining light is reflected back. Remaining light is reflected back, which forms the first image. First image due to reflection. But it is not brightest. The second image formed by reflection on the, so इसमें ray diagram थोड़ा गलत बना हुआ है. Yes, I got. In your book the ray diagram is little bit wrong, but चलो कोई नहीं. Follow the same. Maybe next class I'll explain it again. सर The क्या गलत है? second image, जो second surface में reflection है उसके images नहीं draw किए हैं. It has shown only from the first surface. I also didn't notice it. Second surface पे जब reflection होगा ना, जैसे यहाँ से देखते हैं, पहले लाइट आई फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो गई इसकी इमेज, ठीक है. अब ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, इस रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनेगी. दिस विल बी द सेकंड इमेज व्हिच इज द ब्राइटेस्ट. अगर यहाँ से निकल गई रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन में तो फिर से कम हो गई. इट्स ओनली 94% ऑफ 96%. ये सपोज सर, 4% रिफ्लेक्ट हुई, पीछे वाला भी फॉलो कर रहा है. ये 96%. तो ये जो रिफ्लेक्शन हुई थी ऑन द मिरर सरफेस, इसकी वजह से इमेज बनेगी. दैट इज द सेकंड इमेज व्हिच इज द ब्राइटेस्ट. अगर हम ये वाली इमेज बना रहे हैं तो रिफ्लेक्शन से बन रही है ना फिर से. दैट इमेज विल नॉट बी मैक्सिमम. कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में I'll draw this again. अभी आपकी बुक सर में जो मैंने समझ नहीं आया. इसके लिए कह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. अब इसको लिख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट. दिस सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज, ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल. एक बड़ा सा डायग्राम बना के आई विल एक्सप्लेन इट. ब्राइटेस्ट इमेज ऑफ ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड. लिख लो फिर आराम से. आई विल एक्सप्लेन इट टुडे और नेक्स्ट क्लास. क्या अभी एक वर्कशीट करनी चाहिए. वर्कशीट आप लोग चीटिंग करके तो नहीं कर रहे हो? क्यों? Seems to me. सर आपको ऐसा क्यों लगता है? आंसर्स देखे मैंने. लास्ट में हमने कौन सी की थी? वर्कशीट नंबर 9. वर्कशीट 8 करी थी. Worksheet 8 या 7.
8 करी थी 8। 8 करी थी। वर्कशीट नंबर 9 एंड वर्कशीट नंबर 10 दो अभी बची हुई है, तो हम 9 अभी कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, जल्दी ही ऑफलाइन शुरू हो जाएगा फिर तो आपको पता ही चल जाएगा। हाँ, यस बॉस, यस, आई एम वेटिंग फॉर दैट। सर सेकंड ऐसे इमेज, कब खुलेगा ऑफलाइन ट्यूशन? बट आप मान के चलो अगस्त फर्स्ट वीक, उसके पहले चांसेस तो कम दिख रहे हैं, बट सर अगस्त में हमारे मिड टर्म्स हैं 80 मार्क्स से। विच डेट? वो कह रहे हैं मिड अगस्त होगा, अभी वो डेट शीट और सिलेबस भेजेंगे। फिजिक्स में सर वो इसके बाद वाला चैप्टर भी दे रहे हैं। इसके बाद वाला चैप्टर भी है? हाँ 5 chapters. इसके बाद वाला चैप्टर का मतलब, नेम ऑफ दैट चैप्टर? लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। हाँ रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस ना, तो हम आज सर ये खुद एक चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा है ये वाला। हमें अभी इसमें हमें प्रिज्म करना है नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी विल सी रिफ्रैक्शन। सो 3 क्लासेस इन दिस। कम से कम सर 60 पेजेस के हैं ये दो मिला के, अगर आप देखो तो। ओके, अच्छी बात ये है कि अगर आप ये वर्कशीट साथ में करते चल रहे हो तो पीछे का प्रिपेयर होता जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी फॉर दी रिवीजन। स्कूल में हो गया चैप्टर? सर स्कूल में तो अभी स्टार्ट करेंगे ये सर रिफ्रैक्शन। स्कूल में तो सर अभी सिंपल मशीन्स चल रहा है। हमारी क्लास में तो पुलिस खत्म का हो है, गया सिंपल मशीन। हम पुलिस का है। I think they will modify the syllabus. Otherwise, we are on track. Don't worry. 1st August onwards, we will be revising these chapters. जो भी आपका syllabus है, तब तक वो खत्म हो जाएगा. According to सर सेफ साइड पे रहने के लिए हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस भी कर ही लेते हैं। कर लेते हैं, बट उसके लिए पहले ठीक है, अभी स्कूल अगर कराएगा नहीं तो कहाँ से एग्जाम में आएगा? डोंट वरी, हम जो साथ में कर रहे हैं उसको साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। इसमें कोई लोचा नहीं होना चाहिए कि ये वर्कशीट बस कॉपी करके दे रहे हैं कहीं से। दिस वर्कशीट इज ओनली सो दैट यू कैन प्रिपेयर, पीछे का भूलो मत। वर्कशीट नंबर 9 I have shared. It's for 20 minutes. Within next 20 minutes, you are supposed to submit it back. सर वर्कशीट 10 होमवर्क है। And भेजी नहीं मैंने अभी। Next class tomorrow. Yes. ठीक है, एक बार ये हो जाएगी फिर हम सारे चैप्टर के मिला के वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ये वर्कशीट वाला जो प्रोसेस है, इससे बहुत फायदा हुआ था लास्ट ईयर के बच्चों को। एवरी टाइम दे रिमेम्बर व्हाट वी डिड। चलो, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं ना? नो सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेकंड इमेज अब इसमें जो बनेगी, सेकंड इमेज इज मैक्सिमम, दिस इज द ब्राइटेस्ट इमेज। रीजन बीइंग क्योंकि वहां पे 96% ऑफ द लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, okay, I have shared the RPP number 9, worksheet number 9. Please start solving it. Send it by 2:15. ठीक है, चलो बाय। I am here in the meeting itself. सर हमारे स्कूल में बस ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ही आ रहा है पुलिस का, दूसरा वाला नहीं आ रहा। दूसरा कौन सा है? वो जिसमें 2 मूवेबल पुली लगा देते हैं और एक फिक्स लगा देते हैं अलग से, पुलिस सिस्टम। तुम्हारा स्कूल कुछ भी करे, अभी मैंने पढ़ा उसको सिलेबस में। सिलेबस पढ़ो फिर से। कह रहा है अगर आएगा भी तो बस उसमें 2 ही मूवेबल पुली हैं। हाँ, 2 मोबाइल पुलिस ठीक है, वो जनरलाइज भी आ सकता है। यू सी द सिलेबस। ओके सर। सिलेबस में है, साफ साफ लिखा है, देखो। पुली यूजिंग सिंगल टैकल, पुली सिस्टम, single fix, single movable, block and tackle, single fixed, single movable, block and tackle, right? Multiple movable वाले cases नहीं है, जिसमें 2 to the power n था, वो वाला केस नहीं। Okay, चलो start your worksheet, send it by 2:15.